Good morning, my dear student. If you remember my previous class, where I have discussed that points, the movement, Mahatma Gandhi and the Nestless movement, where we read the condition between 1985 to 1919. That conditions was the extremist era. There were the various extremist activities happened during that time. That has started from the dividation of Bengal and उसके बाद तमाम सारी घटनाएं जो आपको इस काल के बीच में दिखाई देती हैं जब भारत में क्रांतिकारी घटनाएं तेजी से होने लगी. We also discuss about the Lucknow Pact that was called in 1916, and Lucknow Pact that was a unique incidents in Indian politics. Why? Because the Muslim leagues and Congress, they decided to do work with along with each other, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे. And in 1919 the Montagu-Chelmsford reform. According to Montagu-Chelmsford Sudhar, what I told you about Home Rule League, the Indian leader want that some authority, they have to rule on their own peoples. Montagu-Chelmsford Sudhar given them some rights. Montagu-Chelmsford Sudhar में उन्हें कुछ अधिकार दिए गए. I told you that in Montagu-Chelmsford Sudhar, that was also known as the Indian Administration Act 1919. In this act, the dual administration launched in India. Dual administration means Vaid Shasan. That was founded by Lawrence Curtis first time. According to that, the administration divided into two parts. First, the reserve matters, and second, the transfer matters. I mean to say that the जो महत्वपूर्ण विषय होंगे जैसे लाइक फिनांस, लाइक सिक्योरिटी, लाइक कम्युनिकेशंस, लाइक फॉरेन पॉलिसी, that has in hand of the Council of Governor General. And second, that was the कम महत्व वाले विषय, less important matters like medical, like schooling system, like local administration, that was given to Indians. Some Indian leader, they believed that that was the very good and in favor of us. First time British gave them some rights, so they were accepted it. But the new leaders like Gandhiji and I mean to say that the old leader also like Bal Gangadhar Tilak, they not agree with that Indian Administration Act and they opposed. Gandhi asked for that there is no need of Swashasan, self-administration. They asked for what? Swaraj. ये चीजें जब भारत में आई तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में इसके लिए कई सारे आंदोलन चले और दो घटनाएं, एक तरफ तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध हो रहा था और दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही थी. व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? व्हाट वाज रॉलेट सत्याग्रह? रॉलेट एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, first I want to tell you that Rowlatt Act introduced because the extremist movement that was what? क्या हो रहे थे? तेजी से बढ़ रहे थे भारत में. British officials wanted to suppress or repress the extremists. So that's why they asked for some access rights. Police asked for some rights. On the basis of that, they can suppress them. The rights, the law gave him some extra power. Rowlatt had given them. Sidney Rowlatt, who framed the charters, I mean to say framed that reports, that is called Rowlatt Act, that has passed. The two acts that were introduced in the Central Legislative Assembly. First act that was not passed, but second act, Rowlatt Act, that was passed. Now, police have some access right.
Now the magistrate have right the persons according to him. If he felt that he is suspected, it is not in favor, if he was not doing in favor of the British government, he can be punished by them. And police have also the access rights. Police is threatened by this. And the Indian leaders obviously opposed it. Muhammad Ali Jinnah, Mahatma Gandhi, they were the leaders who protested that. They called that the Rowlatt Satyagraha, that is totally against of the necessary needs of the Indians. भारतीयों की आवश्यकताओं के पूरी तरीके से खिलाफ है. और यही से एक नया मूवमेंट चला. गांधी स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस रूल. गांधी सेट व्हाट? सत्याग्रह सभा. सत्याग्रह सभा क्या होगी? सत्याग्रह सभा इस रौलट एक्ट का विरोध करेगी. इसे काला कानून कहा गया था रौलट एक्ट को. रौलट एक्ट के अकॉर्डिंग कि देयर वर नो वकील, नो अपील एंड नो दलील. कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं. जिसको भी संदेहास्पद दिखे, पुलिस जिसको संदेहास्पद माने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दे, तो कोई सुनवाई नहीं होगी. इसका विरोध किया गया. सत्याग्रह सभा के माध्यम से गांधी ने सत्याग्रह सभा स्थापित की और उसका गांधी ने विरोध किया. इस विरोध में पूरे देश में कई जगह जगह हड़ताल हुई, सभाएं की गई. बट ये सारी सभाएं और हड़ताल नॉन वायलेंस मेथड से की जा रही थी. इवन इफ दे वर सप्रेस्ड ब्रूटली बाय ब्रिटिश रूलर्स. सम वर बुलेट्स वर फायर ऑन देम. गोलियां उनके ऊपर चलाई गई. और हद तो तब हुआ जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन कुछ लोग इकट्ठा थे. सत्यपाल पाल, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने गांधी को आमंत्रित किया था कि गांधी वहां आए हैं, इन्हें एड्रेस करें. गांधी जा रहे थे, बट गांधी वाज अरेस्टेड इन पलवल 8 अप्रैल 1919, हरियाणा, Palwal, that was the place where Gandhi was arrested. Gandhi not reached there. Saifuddin Kichlu and Satyapal Pal, they lead that movements. They marched and on the street of the Amritsar. That day, the Sikh, they celebrated their famous festival Baisakhi. They assembled on the particular place of Maidan. I mean to say that a very vast field to celebrate that. And particular that place, एक व्यक्ति भाषण देने लगा और फिर लोग वहां जुटने लगे. अचानक जनरल डायर अपने सेना के साथ वहां पहुंचता है और उन पर गोलियां चला देता है. बहुत सारे लोग मारे जाते हैं. ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग केवल 379 लोग मरे, लेकिन जो इंडियंस के डाटा है उनके अकॉर्डिंग मोर देन 1000 से ज्यादा लोग ब्रिटिश की गोलियों का शिकार हुए. इतने बड़े भीषण नरसंहार, अ ग्रेट असैसिनेशन, सॉरी नॉट ग्रेट, आई एम टेलिंग, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स, दैट वाज द ब्रूटल असैसिनेशन दैट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स, दैट वाज डन बाय जनरल डायर. इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी. जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि वापस की. इसके साथ ही साथ गांधी ने भी अपने टाइटल को वापस किया. पूरे देश में इसके प्रति विरोध उत्पन्न हुआ. जलियांवाला बाग मॉस्केयर की गूंज दुनिया तक फैली. अमेरिकी न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में बातें उठी. ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर जांच बैठाई. I mean to first let me complete the Jallianwala Bagh massacres in very short. क्या कहता है कि 1919 गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को जब पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लग गया तो जनता में पर्याप्त आक्रोश आ गया. और ये आक्रोश, ये अनसेटिस्फैक्शन, ये क्रोध तब और अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल पाल और सैफुद्दीन किचलू
अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 9 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिए गए। ये जो घटनाएं हो रही थी वो जनता को उद्वेलित कर रही थी और इस दिन की गिरफ्तारी का आदेश पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने दिया था। ये दोनों नेता दिसंबर 1999 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से संबंधित थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, मार्च किया। पुलिस ने जुलूस के आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। पुलिस बैसाखी के दिन एक बड़े मैदान में एकत्रित हुई और 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ गया? सेना के कंट्रोल में कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन शाम के 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठित हुए। 20,000 पीपुल्स दे वर असेंबल्ड पर्टिकुलर प्लेस, जलियांवाला बाग। यह सभा किसने बुलाई थी, इसके बारे में क्लियर व्यू किसी के पास नहीं है। लेकिन इस सभा में, इसके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि हंसराज नामक किसी व्यक्ति ने इसको बुलाया था, लेकिन हमारे पास कोई क्लियर डाटा नहीं है। Who will call that असेंबली? ये किसने बुलाया था नहीं पता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, इस पूरी चीजों के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से डरी हुई थी और इसको दबाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकने के लिए तैयार थे। अब इसी दिन जनरल डायर ने, चूंकि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू था, प्रशासन सेना के हाथ में थी, जनरल डायर अपने कुछ जवानों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और यहां पे गांधी जी से डॉक्टर सत्यपाल पाल सैफुद्दीन किचली को रिहा करने के लिए मांग उठी। जनता ने नारेबाजी की। जनरल डायर ने एक छोटा सा रास्ता था, अगर आप अमृतसर जाएं तो आप अमृतसर के वो जो जगह है उसको अभी एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। वो जगह कई सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है और जब ये लोग भाषण दे रहे थे तो इस पूरे मैदान में, इस पूरे फील्ड में आने के लिए एक छोटी सी दरवाजा थी। उस दरवाजे को आर्मी के जवानों ने कवर किया, ओपन फायर किया, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 379 लोग मरे, लेकिन मरने वालों की संख्या करीब 1000 से ज्यादा थी। 3000 लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए थे, लेकिन इंडियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 लोग मारे गए और 3000 घायल हुए। I mean to say that according to the government report, only 379 people they were died and 1200 they were wounded. But Indian reports tried to prove that more than 1000 people they were died. They were killed by British Army and more than 3000 people they were wounded. इतने ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। इन सारी चीजों को पूरे देश में इसमें क्या किया गया, इसकी निंदा की गई। इस हत्याकांड को CF एंड्रूज ने जानबूझकर की गई हत्या कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर के स्क्रिप्ट के सदर में कहा कि जनरल ओडायर को बचाने के लिए, जनरल ओडायर को बचाने कहा कि तुम्हारा जो काम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो क्या कह रहा है, कह रहा है तुम्हारे द्वारा की गई कार्रवाई ठीक है, गवर्नमेंट से स्वीकार करता है। इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा, वजीराबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और टैगोर ने स्पष्ट कर दिया कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों, टाइटल्स से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। इस कांड के बारे में थॉमसन और गैरेट ने लिखा
कि अमृतसर दुर्घटना भारतीय ब्रिटेन के संबंधों में एक युगांतरकारी घटना के रूप में याद की जाएगी, जो 1857 के विद्रोह की तरह थी। अब इसके बाद इसकी जांच कमेटी के लिए, जलियांवाला बाग मस्केर के जांच के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, कमीशन बैठाई जाती है। दैट वाज हंटर कमीशन। दैट वाज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। हंटर कमीशन कहता है कि मार्च 1920 में उसने रिपोर्ट दे दी। हंटर कमीशन में 3 भारतीय भी थे, सर चिमन लाल तलवार, शाहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इसके साथ 5 मुस्लिम्स भी हंटर कमेटी के मेंबर बने। लेकिन जलियांवाला बाग मस्केर की जांच कमेटी के मेंबर थे कुल 8 लोग, जिसमें से 5 ब्रिटिशर्स थे और 3 भारतीय थे। 5 ब्रिटिशर्स में लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ और 3 भारतीयों के नाम जैसा कि मैंने लिया, सर चिमन लाल तलवार, साहबजादा गुलाम अहमद और जगत नारायण। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पारित कर दी थी। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीबापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। समिति ने डायर पर दोष का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। हाउ स्ट्रेंज कि पूरी तरीके से अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए रिपोर्ट में खूब लीबापोती की गई। पंजाब के गवर्नर को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया, उसको निर्दोष मान लिया गया। जनरल डायर के बारे में भारतीय गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर मॉन्टेग्यू ने कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेक नियत से काम किया, अतः उसे परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने में गलती हो गई। डायर उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया। जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का सिर जनरल डायर को कहा। इट मीन्स अब यहां पे जनरल डायर को हीरो के रूप में लिया गया। आई होप यू रिमेंबर व्हेन आई टॉट यू द पेंटिंग्स एंड इमेज ड्यूरिंग रिवोल्ट, आई मीन टू आफ्टर रिवोल्ट। Once again, that incident happened when the General Dyers, who killed more than 1,000 people, who they were totally innocent, they were killed by him. But next side, by the British side, the persons who killed them, they were rewarded. The brave titles, I mean to say the great title that was given by him, ब्रिटानिया शेर का नाम दिया गया उसे। मॉन्टेग्यू चीफ कहता है, जो मॉन्टेग्यू है उसमें, मॉन्टेग्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, ही पास्ड कमेंट ऑन जनरल डायर दैट जनरल डायर ने जो काम किया, व्हाट द वर्क हु डिड, दैट वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बट ही यूजेज ओवर फोर्स ऑन देम। मतलब कहता है कि जो भी उसने किया वो लॉयल्टी के साथ किया, जो भी उसने किया वो भारतीय आई मीन टू से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को स्थापित करने के लिए किया, लेकिन उसने आवश्यकता से ज्यादा ही ऐसा कर दिया, इसलिए उसको दंड स्वरूप उसको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे कई सारे रिवार्ड दिए। मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने डायर के लिए 30,000 पाउंड धनराशि इकट्ठा की। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। यू हैव नेवर फॉरगेट, आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही गवर्नर जनरल थे, माइकल ओ डायर। हियर डोंट बी कंफ्यूज, द लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब, देयर नेम वाज माइकल ओ डायर, एंड द गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब, सॉरी, एंड द मिलिट्री जनरल्स माइकल डायर, जनरल डायर और माइकल ओ डायर, दे वर टू पीपल्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या 1914 में लंदन में जाकर के उधम सिंह ने कर दी थी। भारतीयों ने भी इस कमेटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कमेटी बनाई, जिसे तहकीकात कमेटी कहा गया। तहकीकात कमेटी में जो लोग नियुक्त किए गए थे, उस पर तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की।
इस कमेटी में गांधी जी, पुपुल जयकर, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सीआर दास जैसे लोग इसमें सम्मिलित थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों को इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया और सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। ये चीजें गवर्नमेंट में की गई, लेकिन गवर्नमेंट ने चीजों को टोटली क्या किया, इनकार कर दिया। यहां पे टोटली उनकी बातों को नहीं माना गया। अब एक नए मूवमेंट की शुरुआत। व्हाट वी रीड, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह पढ़ा, हम लोगों ने जलियांवाला बाग मस्केर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द टॉपिक्स खिलाफत मूवमेंट एंड देन आफ्टर वी विल रीड नॉन कॉपरेशन 1920 टू 1921। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत 1919 टू 22, ये मूवमेंट क्या था? व्हाई गांधी यूजेस दैट मूवमेंट फॉर देयर ओन पीपुल्स? Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harass treaty on Turkey Sultan or Khalifa. People were famous about this as they had been about the what? The Jallianwala massacres. People's aware that Jallianwala massacres. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the East while Ottoman Empire. The leaders of the Khalifa agitations, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs. It means Jallianwala Bagh massacres. The Khilafat wrong demanded Swaraj. अब यहीं से जलियांवाला बाग ने ऐसी दशा उत्पन्न की जिससे गांधी ने दोनों को बड़ा अच्छा अवसर समझा। घटनाएं एक के बाद एक घटती जा रही थी। रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मस्केर, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार, जनता के अंदर की आक्रामकता, जनता का विरोध, उन सभी को गांधी ने यूज किया एक नए मूवमेंट के लिए। और ये नया मूवमेंट गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज करके चलाया है। नया मूवमेंट गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी का ये पहला ऑथराइज्ड और महत्वपूर्ण मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट की, लेकिन खिलाफत ने वो दशाएं उत्पन्न की। खिलाफत था क्या? खिलाफत मूवमेंट हुआ क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि द खिलाफत इश्यू वाज वन सच काजेस। In 1920, the British imposed the harass treaty on the Turkish Sultan of Khalifa. People, they were furious about the British administration. There is no need to explain again. जरूरत नहीं है फिर इसको बताने की। और यहाँ पे जो खिलाफत हुआ, आई मीन टू से जो तुर्की के कमाल पाशा थे, उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। सॉरी, तुर्की के जो खलीफा थे उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। कहने का सेंस ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, शुरुआत यहां से होती है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने तुर्की को एक प्रॉमिस किया, एक ट्रीटी हुई ब्रिटेन और तुर्की के बीच, सेवर्स की संधि, सेवर्स पैक्ट और सेवर्स ट्रीटी। इसमें तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार उनसे छीन लिए गए। संसार, पूरे वर्ल्ड में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ हस्तक्षेप
मतलब कहने का सेंस, तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही साथ धर्म स्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने जो प्रॉमिसेस थे उससे मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार को नफरत भरे दृष्टि से देखने लगे। अब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एकदम सही समय था गांधी जी के लिए। अब महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी इसके अध्यक्ष बने और यहीं पे सुझाव दिया गया, असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1988 में भारत में खिलाफत आंदोलन का मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ा। गांधी जी के कहने पे एक शिष्टमंडल डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में लंदन पहुंचा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए पहुंचा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। दोनों दल अपने लक्ष्य से वापस आ गए। 20 जून 1920 इलाहाबाद हिंदू मुस्लिमों की संयुक्त बैठक हुई, यूनाइटेड सेशन किया गया और असहयोग को एक अस्त्र के रूप में अपनाने, एक्सेप्ट करने की बात कही। नॉन कॉपरेशन को एक विपन के रूप में यूज करने की बात इंडियन पॉलिटिक्स में की गई। और ये जो अब यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत को मर्ज करने के लिए गांधी ने एक नया स्टेप उठाया। गांधी जी was foresighted. He know that without the unity with Hindu and Muslims, we cannot success in our aim. हम अपने एम में सफल नहीं हो सकते। गांधी की इस नीति ने असर डाला, प्रभाव डाला, परिस्थितियां बदली धीरे धीरे। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने भारतीय राजनीति से जोड़ दिया। इलाहाबाद में 1920 में हिंदू मुस्लिम की जो सेशन बुलाई गई थी उसमें नॉन कॉपरेशन को एक विपन के रूप में अपनाए जाने की बात की थी। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 31 अगस्त 1920 31 अगस्त 1920 that day was known as Khilafat Day, 13 August 1920. And one other important date, I mean to say that 1918, 1919, especially कब कहते हैं कि इलाहाबाद में 1920 जून 1920 में इलाहाबाद में क्या किया गया, एक बैठक बुलाई गई थी। इलाहाबाद में खिलाफत दिवस के रूप में 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ये एक दूसरी चीज। और 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की जो बैठक हुई उसमें नॉन कॉपरेशन को किस रूप में लेने का क्या, एक विपन के रूप में एक्सेप्ट करने की बात दोनों के द्वारा की गई। अब यहां से इस आंदोलन ने एक नया रूप लिया। सितंबर 1920 कलकत्ता स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हो रहा था, इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की बात की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जो भारतीय लीडर हैं वे विधान परिषदों मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बहिष्कार को लेकर का बहिष्कार करेंगे और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे। दे प्रमोट स्वदेशी गुड्स। इट मीन्स यहां पे 4 बातें की गई, स्वशिक्षा, स्वशासन, बहिष्कार और स्वराज्य। 4 वर्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन बहिष्कार के मुद्दे पे नेताओं में आपस में 2 फाड़ हो गई। लाला लाजपत राय नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार किया जाए। लाला लाजपत राय वही थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे 1920 में स्पेशल सेशन की, और गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से नाराज थे। उन्होंने इसका विरोध कर दिया। कांग्रेस के अन्य नेता जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, एस खापर्डे ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया।
दिसंबर 1920 नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास कर दिया गया, अंतिम से फाइनली पास कर दिया गया। इस समय खोसला इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो प्रोक्लेमेशन थे उसमें 1 साल के अंदर स्वराज देने की बात की गई थी, और इस आंदोलन का प्रचार अपनी पत्रिका के माध्यम से अबुल कलाम आजाद अल हिलाल के माध्यम से कर रहे थे। यहां पे आपको 3-4 बातें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर गांधी एंड इट वाज वन द क्लेवर स्टेप, एक चालाकी भरी नीति थी गांधी की। गांधी ने यहां पे एक साथ कई निशाने लगाए। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मर्ज कर दिया। दूसरा, गांधी ने एक स्पेशल सेशन बुलवाई, नागपुर सेशन, कांग्रेस का सेशन जिसकी लाल लाजपत राय अध्यक्षता करते थे। यहां 4 बातें रखी गई: स्वशासन, स्वशिक्षा, स्वरोजगार और बहिष्कार, बाइकआउट किन किन चीजों पर हो, इस मुद्दे पे नेता आपस में अलग अलग विचार के थे। लाजपत राय ने इसका विरोध कर दिया। और हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिमों को प्रमोट करने की जो बात थी, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट करने की जो बात थी, इस पे मोहम्मद अली जिन्ना और सारे लिबरल्स नाराज हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कहा था गांधी से कि मिस्टर गांधी, प्लीज डोंट गिव हिम सम एक्सेस राइट्स। उन्हें इतना ऊंचा मत उठाइए कि कल को वो आपके लिए एक खतरा साबित हो। दैट स्टेटमेंट गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का विरोध कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी ने नहीं माना। इस तरीके से यहां पे भी तो फाड़ दिखाई देती है। गांधी एक तरह इन नेताओं को भाई किनारे कर रहे थे, साइड लगा रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम एकता के साथ गांधी चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू हम 1 साल में स्वतंत्रता दे देंगे। क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? क्या गांधी अपनी सारी बातों में सफल हुए? दीज आर ऑल वी विल रीड इन माय नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।